Question number 15, financial statement with adjustment. From the following trial balance extracted from the books of Raga Limited, prepare a profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as at that date. चलिए सबसे पहले ड्राइंग्स दी हुई हैं. यू नो वेरी वेल ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होती हैं और कैपिटल कहाँ पे आती है? लाइबिलिटीज साइड बैलेंस शीट में. ड्राइंग्स हैं 20,000 की. इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग आपकी असेट्स है, फिक्स्ड असेट है. ओके, लैंड एंड बिल्डिंग. और बेटा लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है आपको 12,000. कितने की दी हुई है? 12,000. इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 40,000. प्लांट एंड मशीनरी 40,000, ये भी असेट है. कैरीज इनवार्ड कहाँ आता है? एक्सपेंस. ट्रेडिंग क्या आता है? ट्रेडिंग टू कैरेज इनवार्ड. ट्रेडिंग के डेबिट साइड आपने एक्सपेंस लिख दिया ये 100 रुपीज. देन वेजेस. वेजेस भी कहाँ आता है? ट्रेडिंग के डेबिट में ही आता है, एक्सपेंस है आपका. वेजेस दी हुई है बेटा 500 की. मैं इनको पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि एक एडजस्टमेंट दी हुई है नीचे. देन सैलरी. सैलरी कहाँ आती है आपकी? प्रॉफिट लॉस. कहाँ आती है बच्चे? प्रॉफिट लॉस. एडजस्टमेंट दी हुई है, पर्टिकुलर्स के कॉलम में ही लिख रहा हूं अमाउंट को 2000. फिर सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न कहां से माइनस होती है? सेल्स से. सेल्स रिटर्न कितने की दी हुई है? सेल्स रिटर्न 200. देन बैंक चार्जेस. बेटा बैंक चार्जेस जो हैं आपके वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. बैंक चार्जेस दिए हुए आपको 200. देन कोल गैस एंड वाटर. कोल गैस एंड वाटर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड एक्सपेंस आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. टू कोल गैस and water. These are of 1200. Purchases. Purchases. You'll write this in trading debit. Okay. 1,50,000. There is a return, so I am writing this amount in particulars column. Trade expenses. Trade expenses. Profit loss debit side. Trade expenses 3,800. देन स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ बच्चे. क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक. या तो आप सबसे ऊपर लिख ले या यहां पे लिख ले. टू ओपनिंग स्टॉक इट इज ऑफ 76,800. देन कैश एट बैंक. दिस इज एन करंट एसेट. यू विल राइट इन liabilities asset side. Cash at bank, and cash at bank is of 50,000. Then rates and taxes is an expense. It is an expense, yes or no? So I'll write in debit of profit and loss. 2 rates and taxes. Rates and taxes are of 870. Then bills receivable is an asset and current asset. Bills receivable 24,500. Then sundry debtors. Sundry debtors. Sundry debtors are of 54,300, and I am writing this amount in particulars column because there is some adjustment for sundry debtors. Cash in hand 30,000. Cash in hand 30,000 is also current asset. Okay. Then sales. Sales trading credit side 2,20,000. Capital will comes in liabilities. It is an internal liability. You know very well about that.
1,01,110. Then discount written in credit side, that is an income, and that will come in profit and loss credit side. By discount is of 1,260. Commission by commission written in credit side, so it is also an income, profit loss credit side, 5,230. Bills payable is your liability, and this is current liability. 1,28,870. Then purchase return 10,000. Purchase return 10,000. You have to deduct this from purchases. Okay, trial balance complete हो गया आपका, and all the items in trial balance will posted in only one side of financial statement, one place, एक ही जगह पर आएंगी. ठीक है. Then there is some additional information, adjustments, और हर एक एडजस्टमेंट दो साइड आएगी. ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 20,000. क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट and then current asset. Closing stock 20,000. Then depreciation on plant machinery at 5% minus DAP at the rate of 5%, 600, and this will come here to depreciation on land and building, 600, profit loss के debit side. Then I think I mistakenly charged 5% here. This is 10%. Okay, 10%, my mistake. 1,200, and it will come 10,800. Then 5% on land and 5% on plant and machinery minus depreciation at 5%, 2,000. It will come 38,000. यहां पर भी 1200 कर दिया मैंने. टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2000. ओके, एक्सपेंस है, नॉन कैश, तो कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड. देन मेक ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. मेक ए प्रोविजन ऑन 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेब्ट्स. दो चीजें दी हुई हैं, दोनों डेटर्स पे ही बनाना है. यू नो वेरी वेल अबाउट दैट. तो दोनों में से पहले क्या करें? तो बेटा सबसे पहले बैड डेब्ट्स करेंगे, रिमाइंड दैट. उसके बाद प्रोविजन करेंगे, और उसके बाद डिस्काउंट. तो यहां पे क्या क्या दिया हुआ है? बैड डेब्ट्स दिया हुआ है एंड और डिस्काउंट दिया हुआ है. तो आपको क्या कहा? बैड डेब्ट्स, प्रोविजन, डिस्काउंट. अभी बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट है, तो पहले बैड डेब्ट्स फिर डिस्काउंट. याद रखें, फर्स्ट बैड डेब्ट्स, देन प्रोविजन, देन डिस्काउंट. ठीक है. आइए, तो बैड डेब्ट्स इज ऑफ 5%, प्रोविजन बैड डेब्ट्स माइनस provision, and provision is of 5%. 5%, you have to calculate 5% of 54,300. 54,300 का 5% कैलकुलेट कीजिए. आई थिंक दिस इज 2715. 2715, am I right? ओके, डिडक्ट इट, माइनस कीजिए इसको 54,300 में से. ओके, then discount is of 3%. Discount at the rate 3%. Yes, 51,585. Okay, then 3% डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना है, और जो आपको डिडक्ट करके अमाउंट आया है उसका 3% निकालना है. तो आपको कितना कैलकुलेट करना है? 51,585 का 3%. ओके, calculated 51,585 3%, 1548. amount is 1548. 1548. deduct this also, 50037 means to say that 50,037 यहां पे आ गया. अब इन दोनों अमाउंट्स को क्या करना है?
तो इन दोनों अमाउंट्स को आपको क्या करना है, प्रॉफिट लॉस डेबिट में चार्ज कर लेना है एज एन एक्सपेंस। 2 provision for doubtful debts, that is 2715 plus discount on debtors, that is of 15. Add this and write here. Okay, then they are telling you salary outstanding was 100 plus आउटस्टैंडिंग इसी ईयर से रिलेटेड है, तो आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज विल कम्स हियर in liability side 100 rupees. Then wages outstanding, oh sorry, wages prepaid were 40, so wages is here, wages are here, you have to deduct prepaid 40 rupees, here comes 460, and prepaid expenses will come here. You can write in current assets prepaid expenses. These are fictitious assets, so we used to write prepaid expense under current assets. There is no space, so that I am writing here. Okay, the manager is entitled to a commission of 5% of net profit after charging such commission. ठीक है, this is the last adjustment. और इसमें क्या होगा, first of all you have to calculate gross profit, then total credit side of profit and loss account, deduct all the expenses of profit and loss account. What comes there, you have to deduct from there the manager's commission. ओके ना, मतलब क्या करना है, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपको ये टोटल करना है, टोटल करने के बाद ये जितने भी प्रॉफिट लॉस के एक्सपेंस है ये निकालने हैं, फिर उसके बाद मैनेजर कमीशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए हम सबसे पहले ये कैलकुलेशन कर लेते। आइए, दिस इज 2,19,800, दिस इज 1,40,000. ओके, 2,39,800. I think this side is more from this side. Total it. First of all, total it. 2,39,800 to gross profit. Tell me, what is the gross profit? 40 plus 76, 216. This one 217. Remind that 8, 9, 13, 15, 60. You have to add that. Deduct from 239,800. Hurry up, calculate this. Yes. 21240. This is your gross profit. और ये gross profit you have to transfer this in credit side of profit and loss account. आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, profit loss account की credit side में. Okay, now add this. Hurry up. 21, 22, 27, 2 to 4 to 6, 730. 27, 730, I think. Now add all of these expenses and this one also. Opposite. तो देखिए अभी ये वाला टोटल तो ये आ गया था 27730, 27730, एंड दिस टोटल इज 14433. ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मैनेजर कमीशन. मैनेजर कमीशन आपको निकालना है, सो डिडक्ट दिस फ्रॉम दिस. दिस इज 13,297, and in book it is telling you
मैनेजर कमीशन इज 5% एंड ऑन नेट प्रॉफिट 5%। तो आपको इसका जो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट किया है आपने 5% कैलकुलेट करना है, बट इट इज टेलिंग 5% of net profit in your books, 5% of net profit after charging such commission। मतलब क्या होता है इसका बच्चे कि कमीशन माइनस करने के बाद 5% निकालना है। अभी कमीशन इसमें इंक्लूड है, तो माइनस कैसे करें? तो हम इसको मान लेते हैं कि 5/100 करते हैं, ठीक है, परसेंट निकालने के लिए, और कमीशन इसमें इंक्लूड है। कमीशन कितने परसेंट है? 5। तो ये हो गया 100 + 5 मीन्स टू से दैट आपको क्या करना है, जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया हो तो 10% दिया तो 110, 5% दिया तो 105, 6% दिया तो 106। इस तरह से कैलकुलेट करना है। कब? जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन आपको दिया गया है। ओके, तो कैलकुलेट दिस 13,297 इंटू 5/105, 633। okay, now write here to manager commission 633, then to net profit 13,297 में से 633 को क्या कर दीजिए, डिडक्ट कर दीजिए, 12664, 12664 नेट प्रॉफिट आ गया आपका। नाउ दिस नेट प्रॉफिट will come here, you have to plus this in your capital, and manager commission is your liability। manager commission क्या आपकी liability है 633। now solve this, okay।